Good morning class 10th ਆਪਾਂ chapter 11 discuss ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ but yesterday we have discussed about the structure of the eye and the power of accommodation of eye. Power of accommodation means the ability of the eye lens to adjust its focal length with the help of the ciliary muscles. But today we will discuss about the near point and far point first. Near point. Near point is the nearest distance up to which human eye can see properly without feeling strain. ठीक है ना? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਨੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਾਊਟ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ what is far point far point is the farthest point up to which human eye can see properly without strain ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ for example ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦਾ far point ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ infinity but infinity means up to particular limit suppose room ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ room ਦੀ walls infinity ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਗਰਾਊਂਡ ਅਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਅਨੰਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ मतलब ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ the minimum distance up to which human eye can see clearly without strain is called as the near point ठीक है ना far point की है farthest distance up to which human eye can see properly ठीक है ना पर अपने को next topic की है अपना persistence of vision what is the meaning of persistence of vision पर अपने आई को एक एबिलिटी है कि जो ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 1/16th of a second ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ if 1/16th of a second तक image appear करती है ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ for some sake of time ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਦਾ ਵਿਊ ਸੀ ਬੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 25 ਇਮੇजेस ਜੈਸੀ ਕਰੀਏ 25 ਇਮੇजेस पर सेकंड रखिए मूव करिए तो इमेज की करती है अपन मूव करती हुई नजर आती है फॉर एग्जांपल एक कार्टून्स पहले ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ हैंड ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ 1 2 3 4 5 6 ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੈਂਡ ਐਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੇਜ in the eye even after removal of the object for about 1/16th of a second is called as persistence of vision ठीक है ना ਤਾਂ persistence of vision ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ why we have two eyes instead of one ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ eyes ਕਿਉਂ instead of one reason behind this is ਪਰ two eyes ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ field of view ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਗਲ ਆਈ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਓਨਲੀ 150 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਟੂ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਈਚ ਅਦਰ ਫਰਮ ਅਬਾਊਟ ਫਿਊ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਆਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਈ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਮੇਜ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ 1 ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ 2D ਵਿਊ ਹੈ ਬਟ 3 ਆਈਜ਼ ਦਾ ਵਿਊ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3D ਵਿਊ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 3D ਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ अपना एंगल ज़्यादा इंक्रीज करने वास्ते पर्टिकुलर डिस्टेंस मैजर करने वास्ते की करते हैं साढ़े को अपने को दो आइज है इंस्टेड ऑफ द वन बट अब आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है द डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑलरेडी रिटन इन फ्रंट ऑफ यू मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया एस्टिग्मैटिज्म प्रेसबायोपिया कैटरैक्ट ठीक है ना पूरे सारे डिफेक्ट्स है कि है बेटा लेट्स डिस्कस हाँ जी बच्चे मायोपिया की है बेटा but myopia is also called as short sightedness myopia is also called as short sightedness इसका मतलब क्या है this is a defect of vision in which person can see near objects very clearly but far objects cannot be seen clearly वैसे नाम है short sightedness लगता है कि near नहीं दिखता पर ये है कि ये near objects can be seen clearly far objects cannot be seen clearly पर ये जो हुंदा की है अपने को ਜਿਹੜਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
ਹੁਣ देखो जब कहते हैं कि नीयर ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं फार नहीं दिख रहे तो मतलब की होया जो फार अपने को फार डिस्टेंस कह लेंगे जिम्मे इनफिनिटी क्या सी आपां वो इनफिनिटी ना होके अप टू सर्टन डिस्टेंस आ जाता है कोई जो डिस्टेंस पर्टिकुलर बन जाता है और उस डिस्टेंस के तक ही आप देख पाते उस तो बियॉन्ड आप नहीं देख पाते तो की बोल दें असी दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस। पर अपने छोटे बच्चे अपने को स्कूल के बच्चे खास करके मायोपिक होंगे है क्यों होंगे है वो बुक्स के देखते आराम ना दिखता पर ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता क्यों नज़र नहीं आता दे कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लीयरली बट फार ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लीयरली। बड़ा हर एक चीज़ का एक रीजन होंगे हूँ फार और पॉइंट सीगा और नेड़े क्यों आ गया कारण की है तो मैं कल ही समझाया सीगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की होंगे जी सपोज करो कि मैं तुम मनती हाँ कि मेरा आहा लेंस है तो सेंटर इतने होएगा ठीक है ना जे मैं लेंस को खिंचदा वा सेंटर नेड़े आ जाएगा तो मैं क्या सीगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होंगी है जे अपना आई बॉल इंक्रीज करता है तो फोकल लेंथ की करेगी डिक्रीज करेगी ठीक है नेचुरली अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जे अपनी आई बॉल की लेंथ इंक्रीज करती है तो फोकल लेंथ इज डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज फोकल लेंथ द इमेज फॉर्म्ड इज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना तो अपन इमेज किवें ड्रॉ करांगे डायग्राम किवें ड्रॉ कर सकते हैं बड़ा जनरल च की हुंदा अपने को जो अपने नियर सपोज करो अपनी आई है ठीक है ना आई के ऊपर की हुंदा रेज आंदी है ठीक है ना दे मीट एट वन पॉइंट कॉल्ड एज द रेटिना ठीक है ना जे अपने को की है ये एक्चुअल करेक्टेड आई है बट जे अपने को मायोपिक आई होंगी है ये इत्थे इमेज नहीं बनता कितने बनता इन फ्रंट ऑफ द रेटिना रेटिना तो अगे बन जाता है क्यों बन जाता है बिकॉज इन दिस केस आई बॉल गेट इंक्रीज इन साइज फोकल लेंथ इज डिक्रीज सो इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ठीक है ना तो असं की करना बस इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए वी हैव टू यूज ए कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर एक सूटेबल पावर का कनकेव लेंस यूज करना है ताकि इमेज जी है दोबारा कितने बन सके रेटिना ऊपर बन सके ठीक है ना बड़ा अपने को हम ये जज करांगे कि पावर कितनी है ठीक है ना जानते हैं अपने स्पैक्टिकल चेक करवानी आप डॉक्टर को जानते हैं अपने आईज चेक करवान तो अपने नंबर देंगे ठीक है ना मेरी आई का नंबर कितना है लैफ्ट आई का कितना है राइट आई का नंबर कितना है और नंबर एक्चुअली की है पार है ठीक है ना पार की होंगी है असं डिस्कस करते पार इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ ठीक है ना तो पार कढ़ने वास्ते फोकल लेंथ कढ़नी पड़ेगी बड़ा वी नो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f किदा फॉर्मूला अपने को लेंस फॉर्मूला कनकेव लेंस यूज किया था v भी माइनस दी है u माइनस दी क्योंकि कनकेव लेंस ऑलवेज की बनता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है ठीक है ना तो हम की होएगा बच्चे अपने को जेड़ा u है वो की है इनफिनिटी इनफिनिटी क्यों है अप टू दैट लिमिट अपन देख सकते सी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता सीगा ठीक है ना बट अपने को u इनफिनिटी है तो 1/v माइनस 1/infinity इज इक्वल टू 1/f v और माइनस है कनकेव लेंस करके तो बच्चे 1/infinity पर 0 कंसीडर कर दिया था की होएगा 1/-v इज इक्वल टू 1/f तो माइनस v इज इक्वल टू f ठीक है ना तो जिन्ना अपना फार पॉइंट होएगा उन्नी ही अपनी फोकल लेंथ होएगी बड़ा फॉर एग्जांपल मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर दी थोड़े नाल ठीक है इतने लिखा हुआ है द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज 150 सेंटीमीटर फार पॉइंट कितना अपने को फार पॉइंट इज 150 सेंटीमीटर माइनस रखांगे तो कहते कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लीयरली ठीक है ना हम उसे कितनी पावर दी उत्ते लेंस लगाना है ताकि उन्हें ईजिली सही दिख सके तो की करांगे बच्चे असर यही फॉर्मूला अपने को है माइनस v इज इक्वल टू f तो f कितना हो गया अपने को माइनस 150 सेंटीमीटर तो पता है पहले दसिया सीगा मैं कि फोकल लेंथ जी होंगी जो माइनस कदों होंगी जो कनकेव हो गया अपने को पूरे लेंस केड़ा यूज हो रहा है कनकेव ठीक है ना तो बच्चे अपने को 1/f इज इक्वल टू p होंदा है बट 100/f लेना बिकॉज सेंटीमीटर दे विच है तो 100/माइनस 150 इज इक्वल टू p तो दिस कैन बी कैंसल्ड आउट एज 2/3 ठीक है ना एंड दिस कम्स आउट टू बी 0 पॉइंट सॉरी दिस कम्स आउट टू बी 0 पॉइंट बड़ा इतने बन जाएगा 20 अपने को ठीक है तो आप यूज करेंगे 6 ठीक है ना 6 ही आंदा रहेगा तो 0.66 डायोप्टर का लेंस यूज करना पड़ेगा ताकि आप दोबारा उस इमेज को की कर सकिए उस जगह पे देख सकिए ठीक है ना क्लियर अबाउट दिस बच्चे हुण अपने को की है नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन का नाम है हाइपरमेट्रोपिया बट व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस long-sightedness means when a person can see far objects clearly but near objects cannot be seen clearly ठीक है ना
पर इस केस की होया पहला की सी जिहड़ा ओहदा फार पॉइंट से नीयर आ गया सीगा, हुण की है ओहदा नीयर पॉइंट फार चला गया, नेड़े चीज़ां नहीं दिख रही, थोड़ी दूर दिख रही है, ठीक है ना। तो नीयर पॉइंट ही चला गया, फार चला गया, क्यों चला गया? ये जी आईबॉल है फ्लैटन हो जाती है, जब आईबॉल फ्लैटन होएगी फोकल लेंथ विल इंक्रीज, द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। हुण इमेज कित्थे बनी है अपने कोल? रेटिना तो पिछे, ठीक है ना। पहला कित्थे बनी सी? अगे, ठीक है। पहला की होया सी आईबॉल गेट इंक्रीज इन साइज, हुण आईबॉल गेट फ्लैटन इन साइज। फर्स्टली फोकल लेंथ वाज डिक्रीज, नाउ फोकल लेंथ इज इंक्रीज, हुण फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई तो इमेज कित्थे बनेगी? बिहाइंड द रेटिना। असीं कह सकते हैं कि जे कोई बंदा अपने को हाइपरमेट्रोपिक है, कोई पर्सन हाइपरमेट्रोपिक है और इमेज कितने बनती है अपने को? बिहाइंड द रेटिना। रीजन बिहाइंड दैट इज कि उसका नियर पॉइंट जो है थोड़ा शिफ्ट हो गया अगे, नियर पॉइंट इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। हुण बच्चे इत्थे की करना पेगा आपां नूं, इहनूं दुबारा इत्थे लैके आउण वास्ते वी हैव टू यूज कन्वैक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ एंड सूटेबल पावर, ठीक है ना। कन्वैक्स लेंस सूटेबल पावर दा लेके आना पेगा। हुण इत्थे की होएगा बच्चे अपने को 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। मैं न्यूमेरिकल नाल डिस्कस करवाऊंगी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो मतलब सॉल्व किवें करना है सी, जे अपन करी भी एलसीएम लेंगे तो u चल जाएगा u, ठीक है ना, ऊपर v u v मल्टीप्लाइड नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी u माइनस v अपॉन u v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो f की हो जाएगा अपने को u v अपॉन u माइनस v, ठीक है ना बच्चे। पूरे u की है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट कितने पे? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज योर u, v इज योर डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, v इज द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, ठीक है ना। और f अपने को की है बच्चे फोकल लेंथ। जैसे इस तरह यूज करांगे तो ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ वैल्यू ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ हाउ मच पावर ऑफ द लेंस विल बी देयर रिक्वायर्ड टू क्योर दिस डिफेक्ट, ठीक है ना। पर अब जल्दी ਨਾਲ डिस्कस करते हैं एक बार मायोपिया ਤੇ हाइपरमेट्रोपिया की है ਤੇ हाउ टू रिजॉल्व देम। Myopia is called as nearsightedness, hypermetropia is called as long-sightedness. In this defective vision, person can see near objects clearly, but far objects cannot be seen clearly. And in this defective vision, person can see far objects clearly, but near objects cannot be seen clearly. In this defective vision, eyeball get increased, focal length is decreased. Or in this defective vision, eyeball get flattened and the focal length will increase, ठीक है ना। Here image is formed in front of retina, here image is formed at the back of retina, ठीक है ना। To cure this defect we have to use the concave lens of suitable power and suitable focal length, और here we have to use a convex lens of suitable focal length, ठीक है ना। एक होर चीज़ याद रखनी है बच्चे, मायोपिया विच जिहड़ा नियर पॉइंट है, ठीक है ना, उत्थे ही रहिंदा है, फार पॉइंट डिस्टर्ब होके नेड़े आ जाता है, ठीक है ना। बट हाइपरमेट्रोपिया फार पॉइंट रिमेन सेम बट नियर पॉइंट शिफ्ट्स to we can say shifts towards the far point, ठीक है ना, चल थोड़ा आगे चला जाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर तो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट अपने को की है दो डिजीज अपने हो रहे हैं, दे आर एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया। मतलब प्रेसबायोपिया की है, presbyopia is that kind of defect in the eye in which person eye become both myopic as well as hypermetropic, ठीक है ना। पर्सन की आई है मायोपिक भी हो जाती है, हाइपरमेट्रोपिक भी, मतलब ना तो नेड़े के ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली देख पाता है ना ही दूर के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। उस डिफेक्ट को दूर करने की करते हैं ਅਸੀਂ बाईफोकल लेंसेज यूज करते हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अपर पार्ट इज कनकेव इन नेचर, ठीक है ना, लोअर पार्ट इज कन्वैक्स इन नेचर। अपर पार्ट ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ कनकेव ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚਲਾ पार्ट ਕੀ ਹੁੰਦਾ कन्वैक्स ਹੁੰਦਾ। जो नीचला पार्ट है रीडिंग परपसेस लिए यूज किया जाता है और ऊपर वाला पार्ट फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो हेयर बाईफोकल लेंसेज आर यूज्ड टू क्योर द डिफेक्ट ऑफ द presbyopia. तो presbyopia means generally with aging the person eye become presbyopic, means he has we can say he cannot distinguish far objects as well near objects very clearly. So in this kind of defect we have to use a bifocal lenses. But next diseases are astigmatism. What is the meaning of astigmatism? Astigmatism is a particular disease in which person eye is unable to distinguish between the vertical and the horizontal view. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰ ਹੋਜ਼ ਦੇਖੀ, सबने जाली देखी है ना बच्चे, जाली च की होंदा है, कुछ लाइनां सीधियां होंदियां, कुछ लाइनां लेटवियां होंदियां, ठीक है ना।
लेट हुआ मतलब हॉरिजॉन्टल, सीधियां मतलब वर्टिकल। जी परसन की आई है ठीक है ना, उसका करवेचर कुछ ऐसा सैट हो जाता है कि ना तो वो हॉरिजॉन्टल तो ना या देखेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल नूं या देखेगा सिर्फ वर्टिकल नूं, दोनों नूं इकट्ठे नहीं देख सकता ठीक है ना। तो उस केस से की करना पैंदा है बच्चे, सानू सिलेंड्रिकल लेंसिज यूज करने पैंदे हैं ठीक है ना। सिलेंड्रिकल लेंसिज जिहड़े हुंदे हैं सूटेबल करवेचर दे, करवेचर सैट करते हैं जिहदे अकॉर्डिंग की हुंदा करवेचर नूं पता है की हुंदा ना, करवेचर के अकॉर्डिंग वो सैट करके करते अपनी आई में दोबारा एबल करते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल व्यू दे विच चंगी तरह डिस्टिंग्विश कर सके ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं that astigmatism is a kind of defect of vision in which person eye is unable to distinguish between the horizontal and the vertical view ठीक है ना। बट एक होर चीज़ आप डिस्कस करांगे और इस तो बाद अपने को डिजीज कुछ होर भी है जिवें कलर ब्लाइंडनेस है या अपने को हैगा कैटरैक्ट। व्हाट इज कैटरैक्ट? बड़ा पर्सन की एज के नाल जी आई लेंस है ठीक है ना। कैटरैक्ट की है अपने को बिकॉज ऑफ द एज ऑफ द पर्सन आई लेंस बिकम मिल्की और क्लाउडी ठीक है ना। हुण एक शीशा हुंदा नवा देखते हैं असीं बड़ा चमकदार जिहा हुंदा ग्लास जिहनूं कह दिंदे असीं, ग्लास नूं असीं क्लीन करते रहने हैं बट ईवन दैन आफ्टर क्लीनिंग ऑल्सो जिहड़ा ग्लास दा वी कैन से पहला वाला स्ट्रक्चर उदा दा नहीं रहिंदा ठीक है ना, थोड़ा धुंधला हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी उन्नी नहीं रहिंदी ठीक है। सेम एज अपनी आई जी प्रॉपरली वर्क करी जा रही है वो करके की होंगे जी आई लेंस अपने को की हो जाता मिल्की या क्लाउडी हो जाता है ठीक है ना। ड्यू टू दैट मिल्कीनेस और क्लाउडीनेस व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी और सर्जरी लेंस की क्लीयर करते हैं जिन्ना की होंगे अपने को जी आई हैगी दोबारा प्रॉपर देख सकती है ठीक है ना। तो अपने को कैटरैक्ट की है डिफेक्ट ऑफ विजन। पर एक होर डिफेक्ट ऑफ विजन का नाम है कलर ब्लाइंडनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलर ब्लाइंडनेस? Color blindness is that defect of vision in which person's cone cells, eye ਦੇ ਵਿੱਚ road ਦੇ cone cells है, cone cells are not that effective that can see properly, that can distinguish between different colors और distinguish नहीं कर सकते अलग-अलग colors ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ person ਹੈਗਾ ਕੁਝ particular color ਲਈ sensitive ਹੋ ਜਾਂਦਾ, मतलब particular color ਨੂੰ distinguish ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ और उस case ਵੀ कहते हैं ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ person है that is unable to look at that particular color only। वैसे वो आई नॉर्मल है ठीक है ना बट वो पर्टिकुलर कलर को नहीं देख सकता तो की कहेंगे असू की हो गया दिस इज कॉल्ड एज द कलर ब्लाइंडनेस ठीक है ना। बड़े सारे डिफेक्ट्स अपने को विजन के है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप डिस्कस किया है। नियर पॉइंट की है, फार पॉइंट की है, परसिस्टेंस ऑफ विजन की है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मैटिज्म, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट दैट इज लास्ट वन इज दैट कलर ब्लाइंडनेस ठीक है ना। पर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू हाइपरमेट्रोपिया। लेट्स डिस्कस द न्यूमेरिकल। हम देखो बच्चे इन्होंने क्या है अ 50 years old person 50 साल का बंदा है रिक्वायर आई ग्लासेस, उन्हें आई ग्लासेस चाहिए उन्होंने ठीक है ना विद लेंसेज ऑफ पार 2 डायोप्टर +2 डायोप्टर। पार कितनी है बच्चे +2 डायोप्टर। इत्थों की समझ आ रहा है अपन इत्थों ये समझ आ रहा है कि जी पार +2 होएगी फोकल लेंथ भी +2 होएगी मतलब केड़ा लेंस है कन्वैक्स ठीक है। कन्वैक्स लेंस किस लिए यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया लिए तो अपन दो साइन पता चल गए एक तो एक कन्वैक्स लेंस यूज हो रहा है दूसरा की अपने को हाइपरमेट्रोपिया डिजीज है ठीक है ना। उस वक्त जो लिखा टू रीड अ बुक एट 25 सेंटीमीटर ठीक है ना उन्हें एक बुक रीड करनी है 25 सेंटीमीटर से तो व्हाट इज हिज नियर पॉइंट की होएगा ठीक है ना। हम बच्चे को डिस्कस करना है कि नियर पॉइंट की होना चाहिए। नियर पॉइंट मतलब बी से पता करना है यू बच्चा -25 सेंटीमीटर है यू कितना अपने को -25 सेंटीमीटर। दिस इंफॉर्मेशन इज ओके फॉर अस बच्चे अपने को इंफॉर्मेशन ओके दे ली ठीक है ना। तो हम किए करांगे अपन 1/v -1/u = 1/f ठीक है। तो बच्चे की करांगे इस वैल्यूज पुट करांगे 1/v u दो माइनस है तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा +1/25 = 1/50 ठीक है ना। तो 1/v = 1/50 - 1/25 ठीक है ना। तो बच्चे दोनों का एलसीएम क्या आएगा अपने को 50 ठीक है। 1 - 2 तो कितना आ गया -1/50 तो v will be equal to -50 सेंटीमीटर ठीक है ना। तो बच्चे दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट कि v हैगा कितना होएगा उस पर्सन का -50 सेंटीमीटर होएगा मतलब कि जो नियर पॉइंट है पर्सन का कितने अपने को -50 सेंटीमीटर पे है दैट्स वाई। तो आ फॉर्मूले अकॉर्डिंग आप चेक करते हैं ठीक है ना। ए अकॉर्डिंग की है फोकल लेंथ कितनी है दैट इज अबाउट 50 सेंटीमीटर तो वो अकॉर्डिंग किया है अपने को पावर कितनी यूज हो रही है +20 सेंटीमीटर ठीक है +2 डायोप्टर ओके। तो बच्चे ਅਸੀਂ पता कर सकते हैं किसी भी तरह के नाल
कि ਉਹਦੀ ਪਾਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 'ਚ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਡੀ।